All right, the big story that we are tracking at this moment comes from Uttar Pradesh, where Yogi Adityanath today inside the assembly gave a clear message to the mafia and to the Samajwadi Party. And this was about Operation Mitti Mein Mila Denge, an operation that's well and truly underway in UP. Days after Yogi Adityanath's thunderous announcement in the assembly, where he said that his government will ensure mafia is demolished in the state. Today, bulldozers were seen in action in Prayagraj at the houses of jailed mafia Atiq Ahmed and his close aides. All were under the scanner after the sensational daylight murder of Umesh Pal. Illegal properties belonging to two of the accused, Zafar Ahmed, who allegedly was a conspirator, and Guddu Muslim, the man seen hurling bombs in the CCTV footage of the murder, were demolished. Raids were also conducted on gangster-turned-politician Atiq Ahmed's residence in Lucknow, and several incriminating evidence was taken away from there. अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लखनऊ के महानगर इलाके में बने इस यूनिवर्सल अपार्टमेंट में भी बीती रात को प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर छापेमारी की है। देखिए, ये जो फ्लैट है 202, ये अतीक अहमद का बताया जा रहा है। अतीक अहमद का बेटा असद अपने लोगों के साथ इस फ्लैट में रहा करता था। जो गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मी है, उनका कहना है कि 2012 से अतीक का बेटा असद यहां पर रह रहा था। हालांकि बीते 3 सालों से आना जाना एकदम कम हुआ था, लेकिन 24 तारीख की शाम को यहां पर रह रहे लोग इस फ्लैट को छोड़कर चले गए। संभावना इस बात की है कि उस घटना के बाद शार्प शूटर यहां पर आए थे और उसके बाद यहां से कुछ सामान लेकर वो वापस किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए हैं। हालांकि एसटीएफ और यूपी पुलिस सोर्सेस के आधार पर यह मानकर चल रही है और इसी कवायद के चलते यहां पर यूपी एसटीएफ की टीम ने रेड की और अंदर से जो सामान है वो जानकारी खंगालने की कोशिश की। Even as Yogi's zero tolerance for crime policy plays out, more pictures have now emerged of the accused with Samajwadi Party leaders. While yesterday it was alleged conspirator Sadakat who was seen with Samajwadi Party chief, today images of one of the shooters caught in CCTV footage, Gulam with Akhilesh Yadav, went viral, prompting a scathing indictment of the Samajwadis by none other than the Uttar Pradesh Chief Minister. साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब एक पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? There was controversy today in Uttar Pradesh when BJP leaders in the assembly and outside warned Atiq Ahmed and the Samajwadi Party, saying that this is just the beginning. In fact, there was a furor after BJP MP Shubrat Pathak went so far as to say that right now it's just demolition. Soon, nobody should be surprised if Atiq Ahmed's car overturns. कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, उमेश पाल के ऊपर है। चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी थे, उनकी भी हत्या हुई है। तो जब ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हुआ था, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ऐसे में यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये केवल कहने से बात नहीं चलती है, कानून का इतना हनक होना चाहिए कि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इस समय दिन दहाड़े अपराधी गोली की बौछार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अपराधियों में सरकार का कोई खौफ नहीं रह गया। All right, joining us on the debate, we have Manish Shukla, spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Deepak Pandey, leader of the Samajwadi Party, Tanvi Pruthi, political analyst, will be joining us in just a bit. Deepak Pandey ji, मुख्यमंत्री ने आज 2 दिन पहले बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे। आज वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो कल्चर था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, उसके ऊपर चोट की जा रही है।
देखिए, समस्या इस बात की है, योगी आदित्यनाथ जी कभी क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं है, गुंडे या तो जेल में हैं या जेल से बाहर चले गए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो उनके पहले स्टेटमेंट में ही इतना ज़्यादा जो डिस्प्यूट रहता है कि अब जब सारे गुंडे बाहर चले गए थे उत्तर प्रदेश से या जेल में चले गए थे, तो ये बताइए कि ये कांड कौन कर रहा है। नोएडा में लगातार गोलियां चल रही, बुलंदशहर में गोलियां चल रही है, प्रयागराज में ये कांड हो गया, इसमें लगातार गोलियां चल रही, ये कौन कर रहा है। आखिर में ये गुंडे कहाँ गए। रोज तो ढोल बजाते थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं है। अब बताइए, अपनी सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के पीछे उत्तर प्रदेश में गुंडे हैं, इनको ये बताइए कि अब अगर गुंडों का घर गिर रहा है तो आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं। देखिए, गुंडों का घर गिराते गिराते कानपुर में 2 ब्राह्मणों का घर गिला करके जला करके ये मार देते हैं। ये भाई, ये कौन सा बुलडोजर चला रहे हैं कि 2 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। तब तो आप लोग, कोई नहीं बोलता है, चाहे आप मीडिया वाले हो चाहे सत्ता पक्ष वाले हो, कोई नहीं बोलता। जब 2 ब्राह्मणों के घर की महिलाओं को जला दिया जाता है, सरेआम जला दिया जाता है योगी सरकार के द्वारा, तब ये क्यों नहीं कहा जाता है कि ये बुलडोजर योगी सरकार का चला है, माफियाओं के ऊपर चला रहे, चलाइए माफियाओं के ऊपर। माफिया क्यों इतनी बड़ी वारदात देने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं, उनके अंदर कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपकी सरकार बने 6 साल हो गए और आप बैठे तो घर में क्या सवाल का कर रहे जवाब हैं। नहीं दे रहे हैं सर दीपक पांडे जी, कि अगर अतीक अहमद और उसके गुर्गों के ऊपर एक्शन हो रहा है तो आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं। चलाइए, मैं कह रहा हूं अतीक, बिल्कुल अतीक अहमद पे चलाइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे चलाइए, ब्रिजेश सिंह पे चलाइए, धनंजय सिंह पे चलाइए, रघुराज प्रताप राजा भैया पे चलाइए, और उसके बाद विनीत सिंह पे चलाइए, सोनू मोनू सिंह पे चलाइए, सुधीर सिंह पे चलाइए, कुंटू सिंह पे चलाइए। चलिए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर तो सब लोग एक मत हैं माफिया उत्तर कि अतीक अहमद के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी कार्रवाई, बुलडोजर। तब तो डिबेट ही खत्म। हर्षवर्धन जी, नहीं, ऐसा होता पद्मजा तो बहुत अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से अभी जब हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में इस तरह का आतंक का माहौल हुआ और सरकार वहां सरकार की तरह काम करती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अपराधी माफिया जेल में है, अतीक अहमद भी अभी जेल में है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है, वो अभी भी जेल में है। लेकिन अगर जेल में रहते हुए इस तरह की हत्या करवा रहा है और उसके ऊपर आरोप आते हैं और जिस तरह से हत्या होती है तो उसकी प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन भी उसी तरह से देता है। मैं ये जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को बड़बोलेपन से बचना चाहिए, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून की एक स्थिति होती है, प्रशासन काम करता है, बड़बोलेपन से बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आतंक फैलाने का काम अपराधी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको उनकी भाषा में जवाब देता है। और जहां तक रही बात कि क्या बुलडोजर काम करता है, आप जब कानपुर की घटना पर बात करेंगे तो उसका मैंने क्या उस पर प्रतिक्रिया दी थी उसको देखना चाहिए, लेकिन एक घटना से दूसरी घटना को नहीं जोड़ सकते। यहां अपराधी सीधे सीधे इतनी बड़ी साजिश रचता है, पूरे शहर को दहला देता है, फिर से आतंक का राज कायम होता दिखता है। और अगर वहां सरकार इस तरह की कार्रवाई करती नहीं दिखेगी तो लोगों का भरोसा टूटेगा कि हमने किस सरकार को चुन लिया। सरकार चुनी इसीलिए जाती है कि जनता के भरोसे पर बनी रहे, खरी उतरे। तन्वी पृथ्वी, ultimately it's a message not just to the mafia but also to the people that we are watching out for you, and these people will be given their just desserts. Good evening, Padmaja, to my fellow panelists and all your viewers. I will make 2 points. Point number 1, Supreme Court last year told UP government to stop retaliatory demolition. And the sir that was speaking before me, he said that, police has been empowered to take action for the sake of the public. But, Patna High Court went on record to say that what kind of precedent are we setting? Should we close the courts? Should we close all the civil and criminal courts and tell police to demolish whomever they want? Is that the rule of law that we want to establish? But point number 2. But you're saying, just hold on a second, but in saying that you're assuming that this was done extra constitutionally. Padmaja, all I'm saying is that this is not Maggie which can be served in 2 minutes. There has to be a due process of order asking for demolition. There is the municipal authority asking for demolition. I am in favor of these criminals. Throw them behind the bars and but follow the due process of law. So, an accident and then police come and
So this is my home. Is that what we want? Is that the rule of law that we want to establish? I'm sorry, this precedent is wrong. This is completely antithesis to the rule of law. बताइए सर, बीजेपी में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मनीष शुक्ला जी, किसी का भी घर तोड़ देते हैं, फिर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम जीप उनकी गाड़ी पलटा देंगे। देखिए पद्मजा जी, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे तो हमने उत्तर प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करेंगे। जिस अतीक अहमद के समर्थन में समाजवादी पार्टी और तमाम लोग खड़े हैं, अगर उनको पता हो तो 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई, जमींदोज की गई या सरकार ने उसको कब्जे में लिया है। जो दुर्दांत घटना हुई है उस घटना के पश्चात मनीष जी, उत्तर अतीक प्रदेश अहमद में जब आपके सरकार में देवरिया में जेल में बंद था तो लखनऊ से किडनैप करवा करके देवरिया जेल में मंगवा करके लोगों को पीट करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करता था। तब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उसी अतीक अहमद के पीडीए की कार्रवाई है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दे रहे हैं, तब भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से शोर मचा के कब तक अपना ढोल बजाते रहेंगे? जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे कि हम लोग ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, कब तक समाजवादी पार्टी के पीछे छिपते रहेंगे आप? 6 साल हो गए आपको। अतीक अहमद आपको उत्तर प्रदेश में नहीं संभला, आपको अहमदाबाद भेजे, अहमदाबाद से भी नहीं संभल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके सरकार का कोई मंत्री। पांडे जी एक सेकंड, पहली बात तो एक सेकंड, इस प्रकार की दुर्दांत। पांडे जी, पहली बात तो ये पहली बार नहीं है कि अतीक अहमद के ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई हो रही है। 2020 में भी जो उनका घर था उसको गिराया गया था। अभी भी जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो कह रही है कि 20 ऐसी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज सिर्फ शुरुआत। पूरी बात करके दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। आप ये बताइए 6 साल से क्या कर रहे थे? 6 साल से वो, अरे मैंने अभी तो आपको बताया कि सितंबर 2020 में अतीक अहमद का घर तोड़ा गया था प्रयागराज में। जेल में से आतंक फैला रहा था। आज वो अहमदाबाद अगर बैठा, अहमदाबाद से आतंक फैला रहा तो ये लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 6 साल हो गए आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते करते। अच्छा बताइए मनीष शुक्ला, पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आप गाड़ी पलटने की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात का जवाब दीजिए कि आप इतने सालों तक क्यों रुके हुए थे। अरे ये फर्जी बातें हैं। जब इनके पास कोई अच्छा ठीक है सर, मौका तो दीजिए, तभी तो वो बात बताएंगे। फर्जी बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है गाड़ी पलट देंगे, कोई कह रहा है घर गिरा देंगे। अरे एक सेकंड मनीष शुक्ला, ये दर्द बहुत बयां कर रहा है। सदन में अखिलेश यादव जिस तरह इंटरप्ट कर रहे थे और चैनल पे जिस तरीके से दीपक पांडे इंटरप्ट कर रहे हैं, ये दर्द काफी है बताने को उत्तर प्रदेश की जनता से कि अतीक और अशरफ से इनके क्या संबंध है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीए की कार्रवाई है, मकान अवैध था और जो सूत्र कहते हैं कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी। तो बेनामी संपत्ति को बचाने के लिए अगर अखिलेश जी को इतना दर्द है, जाके उसके सामने आंदोलन कर। ये भी एक दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता देख ले। लेकिन मैं इस बात को क्लियर एंड लाउड कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर कोई कानून से खेलेगा, कानून को हाथ में लेगा, तो विधिक दायरे में रहते हुए जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उतनी कठोर कार्रवाई हम करेंगे। क्योंकि हम जनता से वादा करके आए थे और जनता ने हमको इसीलिए जनमत दिया है कि ऐसे माफिया, ऐसे भ्रष्टाचारी जो अकूत संपत्ति सपा और बसपा के शासनकाल में जिन्होंने कमाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई आम जनता चाहती है। Tanvi Prathi, the BJP spokesperson is saying that if you want to protect Benami Sampatti, please feel free to go to court against it. Earlier also, there have been multiple cases which people have filed against bulldozer action. Please do it in the case of Atiq Ahmed. I'm an advocate of Atiq Ahmed, and I don't, and you can take all action required for that. Time to exercise for any chief minister in the country, just to cover up his own faults, that why he was not able to maintain law and order in the state. It is not a PR exercise. This entire bulldozer politics has become a PR machinery to sort of, build up an image that, this is how we're going to handle law and order. That's not how it works. Law and order has to be effective by stopping the crime, not by increasing such lawlessness in the state. Actually, if you're talking about PR machinery, before Harshvardhan Tripathi answers that, do you know that there have been in
Uttar Pradesh, since 2017, magisterial inquiries have been completed in 74 encounter cases where deaths have occurred, and the police has got a clean sheet in all of them. In as many as 61 cases, closure reports have been filed by the police in what was called fake encounters, and they have been accepted by the court, Tanvi Pruthi. So these have been investigated by magistrates, closure reports have been filed, and courts have said that yes, encounters were not fake. But this has become a giant PR exercise, हर्षवर्धन त्रिपाठी. जैसे कि अखिलेश जी कहते हैं, ये डायलॉग वाली सरकार है. मिट्टी में मिला देंगे, ठोक देंगे, तोड़ देंगे, पलट देंगे, डायलॉग वाली सरकार. नहीं, डायलॉग वाली सरकार है, और मैं ये मानता हूं कि ठीक है, भाजपा के बहुत से नेताओं को बड़बोलेपन से बचना चाहिए कि गाड़ी पलट देंगे, ये कर देंगे. लेकिन एक बात जरा किसी को भी, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तन्वी अलग अलग हाईकोर्ट के हवाले से क्या इस्टेब्लिश करना चाह रही. यहां कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई एक अपराधी है जिसने कुछ गोलीबारी कर दी हो, कोई बम चला दिया हो. यहां पर बाकायदा पता था कि उमेश पाल के साथ पुलिस चलती है, 2 गनर हैं, और उनको जिस तरह से दौड़ाकर मारा गया है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पुलिस को वो अपराधी मिलेंगे तो वो अपराधी हाथ जोड़कर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई, हम इनके साथ चलते हैं. अभी न्यायालय चलेंगे, वहां तन्वी जी की बात सुनेंगे, जो तन्वी जी उदाहरण दे रहे हैं उसके आधार. किस तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस कर रही? थोड़ा तो सोचना चाहिए. अगर किसी के घर के बगल में इस तरह की हत्या हो जाए, तन्वी, मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलते आप, अदता नहीं, बीच में मैंने बात नहीं की. तन्वी पृथ्वी, I'll give you time to respond. Let him finish, please. Yes, go on. मेरी बात खत्म होने के बाद बात करिएगा. शर्मनाक है कि ऐसे टीवी बहस में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप अपराधियों को बचाते हुए दिखेंगे. शर्मनाक है ये. मैं कह रहा हूं कि कोई भी अपराधी हो, बिल्कुल न्याय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए. बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चलना चाहिए. लेकिन अगर किसी के घर से हथियार निकल रहे हैं, किसी का घर बेनामी संपत्ति बना हुआ है, किसी के घर से माफिया गतिविधि लगातार चल रही है, उस जगह को क्या कहा जाता है? वो क्या कॉन्फ्लिक्ट प्लेस नहीं होता है? वो क्या, उसको कानून की भाषा में कैसे देखा जाएगा? सीआरपीसी और आईपीसी कैसे बताती है? भारत के संविधान का हवाला देकर अगर हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि बचपन में जो नैतिक शास्त्र की पाठशाला में पढ़ते हैं ना, कि दूसरे की नाक आए तो हमारे अधिकार वहीं खत्म हो जाते हैं. जिस तरह से दहशत का माहौल फैलाया गया है, उसमें सरकार और प्रशासन को काम करते दिखना चाहिए, और उसे जरूर दिखना चाहिए. तन्वी पृथ्वी, आपने योगी जी की तरह डायलॉगबाजी बहुत अच्छी कर दी, लेकिन आप शायद जानते नहीं है कि सीआरपीसी भी जानती हूँ, मैं आईपीसी भी जानती हूँ. लेकिन आप मुझे सीआरपीसी में से एक दे दो. आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक तो कर लिया, पर मैं आपको सीआरपीसी का फेयर एक्ट सर आप प्लीज खोलिए और अभी के भी मुझे प्रोविजन बता दीजिए. कौन सा लॉ ये कहते हैं, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि इसके अंदर बुलडोजर चला दो? ये कहाँ का मैं किसी क्रिमिनल को यहाँ पे वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ. मेरा कहना सिर्फ ये है कि Okay, we'll just try and fix your audio. Harshvardhan Tripathi wants to respond. Please, let's get that fixed. Yes. पद्मजा, मुझे सचमुच बहुत हंसी आती है कि इन्होंने कहा कि सीआरपीसी आईपीसी की कोई धारा बता दीजिए. इनको शायद पता ही नहीं है कि बुलडोजर आज से नहीं है. हर नगर निगम में एक तोड़ू दस्ता होता है. आमतौर पर नगर आयुक्त की ही निगरानी में वो काम चलता है. अलग अलग जोन में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए वो हर दूसरे चौथे निकलते हैं, और जब वो सामान्य लोगों के घर तोड़ रहे होते हैं तो कोई एनालिस्ट नहीं आता है, कोई सरोकारी व्यक्ति ऐसे नहीं आता है. जब किसी अपराधी का घर टूटता है, जब कोई बहुत ढेर सारे लोग भीड़ करके कब्जा कर लेते हैं, तब न्यायालय से ऊपर से लेकर नीचे तक ये चर्चा होती है. मुझे लगता है कि ये रवैया छोड़ना चाहिए. हमें सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए. हमको किसी को अपराध अच्छा नहीं लगता. शांति जरूरी है. सरकार के अलावा किसी का भय नहीं होना चाहिए. सिर्फ गलत करने वालों को भय होना चाहिए. और सिर्फ गरीबों के ही नहीं, बहुत अमीरों के भी. दीपक पांडे जी, अमीरों के भी घर टूटते हैं. ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बताती. और पर मैं बता देती हूं कि 1 दिसंबर 2022 को, और क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूं और यहां बैठी हूं, तो ये तो मैंने देखा है होते हुए, जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर लोगों ने इलीगल तरीके से फार्म हाउसेस बना दिए थे. 30 फार्म हाउसेस, 30 फार्म हाउस बुलडोजर ने जमींदोज कर दिए. 1,20,000 स्क्वायर मीटर को खाली कराया गया, और 40 करोड़ की जो जमीन थी उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली कराया. दीपक पांडे जी, 1 जून 2022
Illegal farmhouses worth more than 17 crores demolished in sector 150 of Noida. तो अवैध कब्जा कोई भी करेगा, माफिया कोई भी होगा, चोर कोई भी होगा, बुलडोजर उस पर चलेगा और बुलडोजर उस पर चल रहा है। पर एक नैरेटिव ये है कि भाई ये तो सिर्फ मुसलमानों पे चल रहा है, या ये सिर्फ गरीबों पे चल रहा है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर चल रहा है। जब फार्म हाउस गिर रहे हैं, चोरों के घर गिर रहे हैं, तो लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पद्मजा जी, आपको मैं बता दूं, देखिए बुलडोजर आज पहली बार नहीं चल रहा। बुलडोजर जैसा अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन टाइमिंग देखिए, ये जो अतीक अहमद का बुलडोजर है, ये उसके इतनी बड़ी दुर्दांत वारदात करने के बाद क्यों चल रहा है? चाहे वो जो विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चला, इतने दिन से योगी सरकार थी, जब अपराधी इतना दुर्दांत अपराध कर देता उसके बाद ही बुलडोजर क्यों चलता? उसके पहले योगी सरकार प्रशासन क्यों सो रहा होता है? उससे पहले ही क्यों नहीं बुलडोजर चला करके बताइए मनीष शुक्ला जी, रोक देते? आप 1 साल पहले ही इनका घर गिरा देते। बुलडोजर चलाने का क्या फायदा? मनीष शुक्ला जी, बुलडोजर चलाने का क्या फायदा? अगर बेनाम संपत्ति थी आप सारे पिछले साल गिरा देते। माफिया की हिम्मत ना होगा। पद्मजा जी देखिए, आश्चर्यजनक बात है कि मैंने डिबेट शुरू यहीं से की। पिछले 6 साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अतीक अहमद की अटैच जमींदोज की गई या सरकार ने कब्जा। 2019 में जब लगा था प्रयागराज में, पूरे प्रयागराज में सड़क की चौड़ी हुई, तो अवैध कब्जे से हटाएंगे, लेकिन अपराधियों पे अगर कार्रवाई, आतंकियों पे कार्रवाई होगी, अखिलेश यादव जी को, दीपक पांडे जी को, ऐसे तमाम लोगों के पेट में मुद्दे उठती है। कारण सिर्फ एक है। जी देखिए, सुने बुलडोजर चलने, देखिए बुलडोजर के पीछे आप बहुत छिप चुके, जनता जान चुकी है कि बुलडोजर फर्जी चीज है। आप लोग उसके पीछे अपना चेहरा छिपाते हैं, आप लोग अपनी असफलता छिपाते हैं, आप लोग अपना 6 साल का घटिया कार्यकाल जो उत्तर प्रदेश की जनता को झेलने के लिए दिया है उसे छिपाते हैं। आप लोग अपनी जो शर्म से आप लोगों का मुंह काला हुआ है वो छिपाते हैं बुलडोजर के। चलिए, मुंह किसका काला हुआ है? उन लोगों का जिन्होंने माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है, या उनका जिन्होंने माफियाओं को टिकट पर लड़ाया है? अल्टीमेटली द पीपल विल बी द बेस्ट जज। हाउएवर, इफ दिस एक्शन is legal, it should also stand up to the scrutiny by court. I'm going to leave it at that. Thank you very much, all gentlemen. Tanvi Prathi for joining me.